نحمده ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. صدق اللہ العظیم. وصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. اس نے ہمیں اپنے حبیب اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عظیمہ مسلمہ مرحومہ مغفورہ میں پیدا فرمایا ہے. کنتم خیر امت کا تاج عظمت و شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم کی سعادت سے مالا مال فرمایا ہے. حبیب کے صدقے میں نجات و بخشش کا پروانے نجات سنا کر کے مزدہ جاں فضا عطا کیا ہے. احسان عظیم ہے، کرم عظیم ہے، فضل عظیم ہے اس کا کہ زندہ ایمان پر توحید و سنت پر رکھا ہے. اور دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. مسلمانوں، اللہ، رسول، قرآن، صحابہ، اہل بیت اور تمام صدیق، صالح اور شہید امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں ان سب کے نام پر ایک ہو جاؤ. تمہاری وحدت کا یہ ٹریلر ہے کہ آج فرقہ پرست طاقتیں کیا رگڑنے کو تیار ہیں آپ دیکھ رہے ہو. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں زندگی ہے. اختلاف بے برکتی ہے، اختلاف میں موت ہے. روح و جسم کا اتحاد ہماری زندگی ہے. جسم سے روح الگ ہو جائے ہماری موت ہے. تو علیحدگی اور الگ ہونا یہ ایک موت کو دعوت دینا ہے. ہمیں یقیناً اللہ واحد حقیقی کے نام پر متحد ہونا ہے. اور اسی اتحاد کی برکت ہے کہ آپ کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ٹھنڈی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ ہوں گے ذرا سا بھی تو حالات اور جو تقاضے وقت کے ہیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مکمل آپ کے فیور میں ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اسی لیے کل میں نے کسی مرید سے کہا ظالموں کے ظلم کو نہ دیکھ، صبر کرنے والوں کے صبر سے ڈر. اب یہ عجیب بات ہے، صبر کرنے والوں کے صبر سے کیسے ڈرنا ہے؟ مراد یہ ہے کہ چونکہ اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے ڈرنا ہے تو صابروں سے ڈرو کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. تو کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہو کر تمہیں
पसपा और जेर कर दे। तो साबिरो तुम्हारे साथ अल्लाह है, सब्र करने वालों तुम्हारे साथ अल्लाह है, इसका यकीन कामिल और एतमाद मुकम्मल रखो। अल्लाह पाक यकीनन आपको कामयाबी देगा। गमज़दा मत हो, परेशान मत हो, कमतर मत समझो। ये जो अकलियत, मिनॉरिटी, जलील, ये सब जो जुमले कहे जा रहे हैं ना, अब तो एक नया जुमला भी सुनने को आ रहा है कि मुसलमान पंचर बनाते। क्या है? नहीं, वो उधर नहीं जाएगी। तो ये जो हमें कमतर समझने का जुमला है ना, ये अहद रिसालत का जुमला है। अब सूरह मुनाफिकून में आप एक आयत देखेंगे, किसी जंग में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलाम हैं, उनके हवाले से अपोजिशन ने एक जुमला कहा है जो कुरान पाक में है, उसको देखें आप। लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, चलो बताता हूं, जलील लोगों को मदीना से हम निकाल देंगे और इज्जतदार को बसाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। तू जिसे जलील कह रहा है, तू जिसे अकलियत और मिनारिटी और कम ये सब जुमले कह रहा है, दर हकीकत तू ही जलील है, तू ही कमतर है। ये तो मेरे हबीब का गुलाम है, ये मेरे नजदीक इज्जत वाला है। तो ये वो बात है कि आपको समझना है कि आपका सपोर्टर कौन है। क्या लिमिटेड 5 साल वाला है या हमेशा के लिए खुदा वहदहु ला शरीक है। अहकमुल हाकिमीन वो आपके साथ है। और इसी साथी से दुनिया क्या कह रही है, देखिए, अच्छे लोग आपको अच्छा कहें तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, लेकिन चोर आपको खराब कहें तो आप कहीं को सोच रहे हैं। ये बात आपको लाना होगा अपनी अक्ल और शऊर में, और इसी नुक्ते नजर से आपको मुत्तहिद होना होगा। हजारों, सैकड़ों, अब तो लातादाद माबूदों के मानने वाले एक होकर आपको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एक खुदा को मानने वाले हर एक में बढ़ गए हैं। एक खुदा को मानने वाले बढ़ गए, कई खुदाओं को मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। इसको आपको समझना होगा। नजरियात और नफ्सियात को थोड़ी देर के लिए ही सही, आप क्या सुलह हुदैबिया नबी मजबूरी में करे थे? अब जरा समझिए, सुलह हुदैबिया ये मुसलमानों के दरमियान सुलह का नाम नहीं है, कि काफिरों के दरमियान सुलह का नाम है, अपोजिशन के दरमियान सुलह का नाम है। तो ये जो नौजवान तबके जो है ना, मैं जो कर रहे हैं ना, जरा उनको भी दबाइए। बड़े लोग बड़े हैं तो आप अपनी अक्लों का इस्तेमाल कीजिए। खुदा, उसको जरूरत है मशवरा की? नहीं है, जरूरत नहीं है ना। मशवरा की जरूरत है खुदा को? वो खालिक मालिक है, किससे मशवरा लेगा जब कोई थे ही नहीं, लोग नहीं थे, अल्लाह था। किसकी जरूरत है उसको? नहीं जरूरत है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बुलाया और कहा, सुनो, मैं तुझसे एक मशवरा चाहता हूं। तफसीर बैजावी बड़ी किताब है, तफसीर की बहुत बड़ी किताब है, और दुनिया की पूरी इस्लामी यूनिवर्सिटी में चलती है। वो पढ़ाने के जमाने में अगर किसी आलिम को चला जाए तो ऐसे तो जरूर करते थे। वो बड़ी गाढ़ी किताब है, वो पूरा मुताला करना पड़ता है, रात भर एकदम बिल्कुल। तो उसमें मशवरा की तारीफ ये है कि किसी काम में आप मजबूर हो, मोहताज हो, तो दूसरों से आप मदद तलब कीजिए। ये है इस्तिफसार, ये तलब करना। तो उसमें एक एतराज हुआ, तो अल्लाह ताला तो मोहताज नहीं है, वो तो मुख्तार है, तो अल्लाह ताला ने मशवरा क्यों लिया? तो वो तलब के लिए नहीं, मजबूरी के लिए नहीं, सुन्नत जारी करने के लिए। अब इसी नुक्ते नजर से आप लीजिए कि अल्लाह के नबी ने क्यों मशवरा लिया? नबी तो सारी कायनात के मुख्तार, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। अल्लाह पाक ने आपको सारे जहान का रसूल बनाया है, सारे जहान का मालिक है। सारा जहान एक तरफ और मुस्तफा का कदम एक तरफ है।
ऐसी शान वाले, लेकिन मुस्तफा जान रहमत भी मशवरा ले रहे हैं। मुसलमानों इस बात को समझो, ये जो मैं जो कर रहे हो ना, ये मैं ही की वजह है जो आज अपने मन से उटपटांग हरकतें आपके खिलाफ करने वाले कर रहे हैं। और आप मैं अपने तोशक और सोफा पे बैठकर मैं बस पोस्ट कर दीजिए फेसबुक पे, लाइक कर दीजिए, अनलाइक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हो गया। नहीं, मुत्तहिद हो गया। अगर ये सोशल मीडिया की जरूरत होती इस्लाम को प्रमोट करने के लिए तो मेरे आका को जरूर अल्लाह ताला देता। आज तो कायनात के हर जर्रे में मुसलमान है ना, वहां तो जरूरत थी इस्लाम को फैलाने की। नहीं, इसको जरूरत ना समझिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये पार्ट है, बस एक हिस्सा है। न मिले तो माशाअल्लाह, जैसे खाने में गोश्त मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सही है ना। और हैदराबाद में तो पालक और गोश्त दोनों खाते हैं, नहीं भी मिले तो चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक सल्लिम। मैं जो बताने जा रहा हूं ये है, खुदा मोहताज नहीं है, लेकिन फरिश्तों को बुलाता और कहता है, क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए फरिश्तों बताओ, मैं आदम को अपना नायब बनाना चाहता हूं, तुम्हारी राय क्या है? अरे बाप रे बाप। अब फरिश्तों ने मशवरा दिया भी, ये भी बात समझिए आप। अगर आपसे कोई मशवरा मांगे तो सामने वाले को अगर आप देखें कि कोई हैसियत नहीं है तो आप अपनी हैसियत को मत देखें, दे दीजिए मशवरा, जो जहां तक मुमकिन हो दे दीजिए, दोनों तरफ से आप देखें। तो फरिश्तों ने कहा, कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। वो देख चुके थे हशर, ये आदमी का मामला क्या है, फसाद बर्पा करना, जलना, हसद करना वगैरह वगैरह। अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये खूनरेजियां, लड़ाई करने वाले। अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्ते पहले इसी जुमले को जो कुरान में, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, अगर जानशीन खलीफा बनाना चाहता है तो हम तो तेरी ज्यादा तस्बीह करते हैं। वो नारा जो लगाते हैं, सुने, खास तौर से, मैं 75 हज कर लिया हूं, 70 उम्रा कर लिया हूं, सुने, यही कहा था फरिश्तों ने, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी हम तस्बीह किब्रियाई बहुत बयान करते हैं, तक़दीस बहुत बयान करते हैं। तो इस बुनियाद पर हमें, देखिए, आमाल की बुनियाद पर हमें बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। अब अपना जो तौहीदी पोजीशन है वो पेश फरमा रहा, कह रहा है, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं जो जानता हूं वो दायरे से, मैं जो जानता हूं। मगर बोले ना फरिश्ते, ये देखिए, तो मशवरे जो है देना, अब कबूल करना या मशवरे हकीकत से मुवाफिक होना ये एक अलग बात है। आपके जो दिमाग में पॉजिटिविटी के साथ हक की नीयत से मशवरा देना। अल्लाह पाक ने कहा, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर कहा कि कैसा, क्या? तो फरिश्ते बात तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, तुमको जो मैंने बनाने का मशवरा, के फरिश्ते जो है इतराज कर रहे हैं, ऐसा करता हूं, सुनो, तुमको सारी चीजों का इल्म दे देता हूं। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारे अस्मा का, कुल्लहा कर लो, सारे अस्मा का। तफसीर में आया है कि ये जो कफगीर है, चम्मच है, डोए है, ये सब जो है ना खाने पीने की चीज, ये सब लफ्ज आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं तफसीर में। चम्मच, डोए, ये काम किस में आता? तो डोए वो हांडी में डालने के वास्ते, खाना चलाने वास्ते, गोश्त चलाने वास्ते, ये सब तक का बता दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, कुल्लहा। और फरमाया, सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, कहा फरिश्ते तुम बताओ क्या है ये, अंबिउनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे खिलाफत में सच्चे हो तो बताओ। तो हजरत सारे फरिश्ते, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए अल्लाह, नहीं, मेरे को नहीं मालूम, जितना तू हमें बताया है उतना ही हमारे पास इल्म है, इसका नहीं बताया इसलिए इल्म नहीं है। उसके बाद कहा, या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम, तुम बता दो
ये प्रैक्टिकल देखिए आप, देख रहे हैं आप। बता दो तुम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो बताना शुरू किया, ये चम्मच है इसका ये काम है, ये डोई है इसका ये काम है, ये कहगीर है इसका ये काम है, ओ तो फरिश्ते का जुमला सुनिए, कालू सुभान का तो कहिए दे, तो अल्लाह पाक फरमा रहा, मैंने कहा था ना कि मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं छुपे जाहिर सबको जानता हूं, सब जानता हूं। हाँ। अब उसके बाद पूरा फिर फरिश्ते एकदम बिल्कुल अपनी पोजीशन पर बरकरार। उसके बाद अल्लाह पाक ने और शान आदम को बढ़ाने के लिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समझिए अपनी आदमियत को, आपकी असल के साथ अल्लाह पाक ने क्या क्या नहीं किया, और आप नस्ल होकर के अल्लाह पाक आप पर करम क्यों नहीं कर रहा है, समझिए। लेकिन शुरू कर दिया है, जरा आप झुक जाइए खुदा की बारगाह में, कसम से मुकम्मल करम करना शुरू कर देगा। ट्रेलर देख लिए हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपकी हम सबकी मदद फरमाए। अल्लाह पाक फरमाता है, इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू li आदम, तुमने जब प्रैक्टिकली तौर पर आदम की अजमत को देख लिया तो सुन, जाओ आदम को सजदा करो। हाँ, सबका हुक्म, आदम को सजदा करो। अब तो कोई एतराज की बात, अल्लाह पाक है और क्या, तो और कुछ हो जाता क्या। फसजदू, सारे फरिश्ते झुक गए, इल्ला, हाँ ये नाम सब याद रखना, अब आज की तारीख में तो जरूर नाम याद रखना, इल्ला इब्लीस। वो झुका ही सिर्फ नहीं, देखिएगा, सिर्फ झुकने का ही इनका अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने झुकने से इनकार किया, घमंड किया, गुरूर किया और काफिरों में से हो गया। ये दो बातें यहां पर मालूम हुई। मशवरा अल्लाह पाक की सुन्नत है, ए उम्मते मुत्तहिदा, ए उम्मते वाहिदा, ए अल्लाह के हबीब की मखसूस और महबूब उम्मत। अल्लाह पाक चाहता है कि जो मामला अगर तुम्हारे पास क्रिटिकल हो चुका है तो आपस में उसको सुलझाओ। कल एक औरत आई, अल्लाह मैं नहीं चाहती, कैसा तो भी करके इसका खुला कर दो। मैंने कहा ये आदत है, वकीलों के पास ऐसे बोलते तो चलो ठीक है, हम वकीले दुनिया नहीं, वकीले इस्लाम है। खूब हम उनके डांट डपट को सुन करके एकदम बिल्कुल क्या करना, गर्मी ऐसी है, कैसा तो भी करो। भाई कैसा क्या करना, बेटी को बोलो खुला तलब करे, वो साइन कर दे, हो गया खुला, कैसा करने की क्या जरूरत। मुसलमानों, घर का माहौल संभालो, सुधारो, एकदम मोहब्बत से बोलिए। मां के कदम में जन्नत जरूर है, बेशक है ना, लेकिन निकाह में हमारी मां गवाही दे सकती है, हमारी बहन गवाही दे सकती है। जरा होम मिनिस्ट्री को समझिए, अगर सही तौर पर अपने दायरे में होम मिनिस्ट्री कर रही है तो ठीक है, लेकिन उनको उनका दायरा समझाइए। किसी औरत को अल्लाह ने नबी क्यों नहीं बनाया, और किसी की बात क्यों कर रहे हैं। खुद मेरे आका के पास 11 बीवियां, लेकिन कोई नबी नहीं है, कोई खतीब। अब गौर कर रहे हैं, औरतों को जो पोजीशन होना चाहिए वो दायरे में रह करके, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या मकाम है, आप समझ रहे हैं। सोचनाक बात है, जरा सी वक्त पर बहू ने चाय नहीं ला करके दिया तो आप बस खुला तलाक। ये क्या हो गया है घरों का माहौल। मैं जो आज बड़ी लतीफ सब बात कर रहा हूं, इसको समझिए। अल्लाह पाक करम शुरू कर दिया है तो आप भी अपनी तमाम तर नाफरमानी के पहलू को भी खत्म करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके घर में 10 लोग हैं और उनमें 8 लोग नेक हैं और 2 लोग खराब हैं, तो वो 2 लोग की वजह से 8 पर भी अजाब आ सकता है। ये मैंने गुज़श्ता ही जुमा में कहा था। आप एक पूरे 1000 सेंटेक्स पानी में 1 कतरा पेशाब मिला दीजिए, नापाक होता कि नहीं। हजारों नापाक चीज में आप हजारों आबे ज़मज़म मिला दीजिए, पाक नहीं हो सकता। इसलिए ऑल इन ऑल आपको इस्लामी माहौल कायम करना होगा। आप यहां आ गए नमाज पढ़ने के लिए, घरों में कौन है जो नमाज पढ़ने की तलकीन करेगा? क्यों इतना बढ़ावा?
یہ سب سمجھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے حوالے سے جب تشریف لے گئے فرمایا اطلاع تو علی الجنہ، میں جنت کو جھانک کر دیکھا، فاطلعت علی الفقراء، تو میں نے جنت میں دیکھا کہ میری امت کے فقراء ہیں، فقراء کی کثرت ہے۔ فقراء سے مراد یہ نہیں کہ بس خالی محتاج، وہ جو ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے اور باطنی طور پر سب کچھ ہے ان کے پاس، ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے اور اس کچھ نہ ہونے پر وہ فخر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میں نے جہنم کو جب دیکھا تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کی کثرت ہے۔ اچھا یہ بات تو آپ سن رہے ہو نا یہاں، لیکن آپ جا کر کے ہنستے ہنستے بولو گے وہاں، اس لیے یہ شریعت بھی مذاق بن جاتی ہے، آپ اس کو سیریس آئینے میں نہیں بولتے، ہنستے ہنستے بولو گے دیکھو مفتی صاحب بولے عورتیں جنت جہنم میں زیادہ جاتی، لو اب مفتی صاحب کو بھی اندر اندر کوس رہی ہے، یہ مولویاں لوگ ایسے چھوٹے، کلیئر کہہ رہا ہوں میں، ہاں ایسا نہیں، سیریس ہو کر بولیے قسم سے۔ کبھی ایسے کبھی آنکھ سے جب آنسو گرتے ہیں نا، تو چھوٹی بیٹی ہماری وہ پہنچنے لگے، پاپا میں ہوں نا، یہ جملہ بولتی تو اور جھرجھر آ جاتا ہوں میں، ایسے ہی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ جنت جہنم نہیں جا سکتا، وہ ڈھال بن جائے گی۔ یہ سب سوچتا رہتا ہوں کبھی کبھی، کہنا گھر میں ایک سیریس ماحول بنائیے، یا مذاق کے آئینے میں اس کو نہ پیش کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ریلیٹڈ باتوں کا تو مذاق بنائیے نہیں، ورنہ آنے والی برکت بھی لوٹ کر چلی جائے گی اور فرشتے جا کر کہیں گے مولا تو نے کہا تو ضرور تھا کہ دے دینا، مگر میں نے دیکھا تیرے حبیب سے ریلیٹڈ چیز کی توہین ہو رہی تھی۔ تو اللہ پاک بھی اپنی شان کے مطابق کہے گا ٹھیک کیا تم نے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ وہ مٹی میں شفا رکھنے والا مولا مصطفیٰ کی سنت میں شفا نہیں رکھا ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث میں شفا نہیں رکھا ہوگا، شریعت محمدی میں شفا نہیں رکھا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی جہنم میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا رسول اللہ کس بنیاد پر؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتی، حج نہیں کرتی، زکوٰۃ نہیں دیتی، کیا نہیں کرتی؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ یکفرن بالعشیر، یہ بخاری سیاہ ستہ کی ہر حدیث ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ شوہروں اس کو بھی ذرا اینگل سمجھو، شوہر کی نافرمانی کرتی۔ اب آپ تو پھول گئے، آپ تو پھول گئے، پانی مانگے ذرا سی دیر ہو گئی، نافرمانی کرتے کہا جہنم میں جاتے۔ یہ دیکھو یہ کون سی نافرمانی ہے؟ آپ نہیں جانتے فاطمہ اور علی کا رشتہ، سبحان اللہ، 100 سے زیادہ اس وقت کے عالم میں کلائمیٹ ایسا، آج تو ذرا سی لو لگ جائے، بخار آ جائے، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب کرے۔ اتنا بخار کہ علی باہر سے جب آئے گھر، سمجھیے چونکہ ہر نکاح میں علی اور فاطمہ کی دعا ہوتی ہے نا، ان کا وسیلہ لیا جاتا، خدا ریئلٹی سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ علی تشریف لائے، فاطمہ کو دیکھا بہت بخار ہے، لیکن کسی بھی طرح بمشقت اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی اپنے بستر پر لیٹنے ہی یا لیٹے ہوئے آ کر کے پاؤں دبانا شروع کرتے ہیں، کہتے فاطمہ میں نے تجھے دیکھ کر کے مطلب دھیرے دھیرے سائلنس ہو کر کے بیٹھا ہوں تاکہ تمہیں خلل نہ ہو، میں نے دیکھ کر ایسے ہی پریشان ہوں کہ تمہیں بخار ہے، تو جملہ سنو قوم کی بیٹیوں، قوم کی عورتوں کو سناؤ جا کر کے، اور ویسا بنو، خالی ون سائڈڈ فاطمہ کا یہ تصور نہ سناؤ، علی بھی غلام علی بن کر کے دکھاؤ، تب جا کر دیکھو احساس۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جب کہا کہ ایسا مت کرو تمہیں بخار ہے، کہا علی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کرنے دو، حقوق العباد سے محروم مت کرو۔ تو آپ بتائیے سما کیا ہوگا، قسم خدا کی سما کیا ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں، کتنا دل خوش ہوگا، فرشتے رش کر رہے ہوں گے۔ ہے ایسا ماحول؟ تم تو اپنے مفاد کی بات سن لیتے ہو تو مس یوز کرتے ہو بیوی کو، جا کر مس گائیڈ کرتے ہو بیوی کو جا کر،
अरे अली का सिर्फ अली की नहीं, फातिमा की नहीं, दोनों की दुआ होती है। तो दोनों को बनना होगा, तुम्हें अली का गुलाम बनना होगा, उन्हें फातिमा की कनीज बनना होगा, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। मुसलमानों, आप मिसयूज मत करो किसी भी चीज को। खुदा ने मशवरा फरमाया, मशवरा ये मजबूरी नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सूरह अनफाल की आप आयत देखो, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत के तहत जंग बद्र का जो माल गनीमत मिले थे, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया। बताइए, मशवरा मजबूरी है? आप लोग यही सोचते हैं ना, कहीं को मशवरा लेना। अब बेटों से, अरे बाप से, अरे मशवरा लो, बातें करो। जब बाप की आंख बंद हो जाएगी ना, तलाशोगे भी तो नहीं मिलेगा। अभी तुम बात नहीं करते हो ना बाप से, अरे बाप मां औलाद से तुम बात नहीं करते हो ना। जब बच्चे एक्सीडेंट में या डूब कर मर जाएंगे तो पूछो, फिर पूछो। अरे बात करो, कसम से बात करो। ये मोबाइल की दुनिया जो है ना, तबाही ला चुकी है, कयामत की बड़ी निशानी बन चुकी है। ये तबाह कर दिया है घरों के सुकून को, माहौल को, कब्रिस्तान बना दिया है घर को। खामोश, और बुराइयां देख रही तो देख रहे। बाप बात करने को तैयार नहीं, मां बहन इंतजार कर रही है। आज कमाल है, मेहमानी में जाते हैं तो ऐसा ही क्या हो गया है। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, बातें करो, कसम खुदा की बातें करो। इसीलिए जानते हो, कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि हम आजमाए कि तुम अमल में कितने अच्छे हो। तो तुम्हारी जिंदगी भी अमली जिंदगी है, तुम्हारी मौत भी अमली, प्रैक्टिकली मौत का एक कुर्बान अमल है। क्या कर रहे हो आप? क्या कुरान खानी का इंतजार कर रहे हो? 40वां 10वां 20वां का इंतजार कर रहे हो? दूसरों को खिलाने का इंतजार कर रहे हो? अरे इससे पहले कि तुम 10वां 20वां के मुकल्लफ बनो, मां की दुआ ले लो यार, बाप की दुआ ले लो कसम से, क्योंकि बहुत बहुत पछताओगे। नस्लें बहुत खराब होने वाली हैं। अगर नस्लों से चाहते हो कि खुशियां मिले, नस्लों से चाहते हो कि तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो, तो एक कौम के लोगों बातें करो, मुत्तहिद हो, घर में एक इत्तेहाद का माहौल कायम करो, बैठो, जब मौका मिले तो बैठो। तुम जॉब करके आए हो तो एहसान नहीं किए हो, जॉब करके आए तो एहसान नहीं किया। कमाल है, जॉब करके आओ और किसी के यहां दावत हो तो फौरन तैयार होकर के जाने के लिए तैयारी है। और जब जॉब करके आओ तो मैं थक गया हूं, अरे बहन को टाइम दो, बेटी को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, बातें करो। नहीं तो याद रखना, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल का उन्वान नहीं है? रात रात भर जगना। क्या मतलब है इसका? नहीं जगते थे, मगर फिर भी ऐसा चेहरा, हशाश बशाश, वो नूरानी चेहरा, कभी कोई शिकम नहीं, जुगराफिया नहीं बदलते। क्यों? खुदा के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ाए मौला के लिए। तो ए इंसान, जिस माँ बाप की खुशनुदी में तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल ने हुक्म दिया कि उनकी रजा तलाश करो, मैं भी राजी हो जाऊंगा, तुम कहां तलाश रहे हो? बातें तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं यार आजकल के बच्चे। कल का जमाना बड़ा अच्छा था, क्लियर कह रहा हूं। हमारे लोग जाहिल थे लेकिन अदब वाले थे। आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन बेअदब है, पढ़े लिखे बेअदब है। आजकल इल्म की बुनियाद पर आप देखिए ना, वो बहू कह रही है कहां है सास ससुर की खिदमत करना। क्या कहूं अब बताइए, दिल नहीं टूटता है सास ससुर की खिदमत करना? कैसे समझाना? मतलब कुरान में जो है वो मानती मां, हाँ वो मानती, हाँ। शौहर को क्या कहा है कुरान हदीस ने कि अगर किसी को सजदा हलाल होता तो मैं हुक्म देता कि बीवियां अपने शौहर को सजदा करे। कौन है तुम्हारा शौहर? इन्हों है, हाँ। उनके इन्हों कौन है? बेटे हैं। तुम्हारे लिए इसको मसजूद बना दिया, सजदा करने वाला बना दिया, इतना बड़ा मकाम इनका। लेकिन ये अगर जन्नत तलाशना है तो उसी बूढ़ी मां के कदम में तलाशना होगा उसको।
आप समझो इस शजरे को यार, आप दरख्त के एक हिस्से को देख रहे हो, पूरे दरख्त को नहीं देख रहे हो। शाखें अपना वजूद खत्म कर देती है अगर कट जाती है। मत करो बेटों से, बेटों को उनके मां बाप से अलग, ए बेटियों, वरना तुम्हारी औलाद भी तुम्हें अलग कर देगी। इंतजार मत करो, नबी का फरमान है कमा तदीन तुरान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मुस्तफा का फरमान है। इसलिए आपस में बात करो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। आमाल में कमियां बेशियां मुमकिन है, लेकिन घर के माहौल में एक हो जाओ। दस्तरखान बिछता है, एक मां बनाने वाली, हर एक खाते हो ना यार, हर एक खाते हो। जो दे दे, जैसा दे दे, जिस तरह से दे दे, उसमें कहते हो कि नहीं वो मैं खाऊंगा, वो मैं खाऊं। थप्पड़ भी लगते हैं मां बाप के। जरा समझो, ये दस्तरखानी उन्वान अदीने जमी सुखरे आमेओस चे दुश्मन बरी खाने यगमा चे दोस्त। ये खुदा की जो ये बिसात अर्द है, ये जो जमीन है, ये खुदा का दस्तरखान है, और उस पर तुम्हें चाहता है कि रब बैठ जाओ, एक होकर के बैठ जाओ। ये अदीने जमीन, पूरी जमीन दस्तरखान खुदा है, उस पर एक होकर बैठो, एक होकर बैठो। एक रोटी भी होगी ना तो 4 लोग खा जाओगे, क्योंकि इज्तिमाइयत में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्तिमाइयत में बरकत है। अलग खाओगे भूखे रह जाओगे, सब मिलकर खाओगे तो मुस्कुराते हुए अल्लाह भर देगा तुम्हारा पेट भी, करम कर देगा। इसलिए सुनो जी, जो सदाए तौहीद दे रहा हूं और इत्तिहाद उम्मत हबीब का उन्वान दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिकली दुनिया में लाओ। अपने नफ्स के लिए शरीयत यूज मत करो, किसी की रहबरी भी करनी है अल्लाह की रजा के लिए करो। भाई बहन खानदान, हम ये नहीं चाहते कि कोई अगर गलत कर रहा है तो आप नजरियाती तौर पर तनफ्फुर ना हो, आपके अंदर नफरत ना हो, लेकिन स्टेटस समझो, लेवल समझो। आप जानते हो मुशरिक बाप मां का भी कदम चूमने का हुक्म है। मुशरिक बाप मां का भी दुनिया में वो जिंदा हो तो कहा गया साहिब हो माफी दुनिया मारूफा, सूरत लुकमान के आयत नंबर 15 में, कि उनके सामने झुके रहना। बताइए क्यों ये रिस्पेक्ट का उन्वान है? ये रिश्ते को समझो, समझो रिश्ते को। ये समझाना चाहता है कि आपका जो खूनी रिश्ता है उसका स्ट्रांगनेस क्या है अल्लाह के लिए। सुनो मुसलमानों, अगर मोमिन मां बाप है तो कितना झुकने कहता होगा अल्लाह, क्या चाहता होगा अल्लाह आपसे। मुशरिक तो जहन्नमी है ना, काफिर तो नतीजे के एतबार से जहन्नमी है, लेकिन फिर भी औलाद को यह हुक्म दिया गया कि तुम क्या डायरेक्ट मां बाप हो? नहीं, तुम अगर आज मां बाप हो तो तुम भी किसी की औलाद हो। औलाद को ऐसी तरबियत दो, बैठकर बातें करो, अपने असलाफ की बातें सुनाओ। रब ने कहा है युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह चाहता है कि जो असलाफ गुजरे हैं ना, उनकी रविश पर अपनी जिंदगी को काटो। पारा नंबर 5 की फर्स्ट पेज में आप देखें, ये आयत करीमा मौजूद है। अल्लाह ये चाहता है कि सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे जो पहले गुजरे हैं ना, उनकी रविश पर काटो। लेकिन आज पढ़े लिखे नौजवान क्या बोलते हैं? उन्हों गलत है तो हमें भी करना, क्या उन्हों गलत है तो हमें भी करना। ये कहना आपके लिए इतना बड़ा घातक है, आपको कहा ही नहीं गया है। बताओ, आप मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो ना, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां का क्या मकाम है आपके नजदीक? वालिद का क्या मकाम है आपके नजदीक? कलमा नबी का जरूर पढ़ते हो, लेकिन इस निस्बत मोहम्मदी की बुनियाद पर हजरत अब्दुल्ला को भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत आमना को भी आप रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके सबके में अपने मां बाप को बख्शे जाने की तमन्ना करते हो कि नहीं? तो कलमा आपने ये पढ़ा है, कलमा अब्दुल्ला का नहीं पढ़ा, कलमा आमना का नहीं पढ़ा, लेकिन रिस्पेक्ट तो है ना आपके दिल में। तो पढ़े लिखे बच्चों, अगर मां बाप तुम्हारे जाहिल भी हैं, ध्यान रखना, तो तुम आलिम होकर, पढ़े लिखे होकर, उस पढ़े लिखे की बुनियाद पर उसकी कदर नहीं, औलाद की बुनियाद पर कदर करो। कि आज जो तुम्हें ये एजुकेशन मिले हैं, अगर मां बाप ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता। ये निस्बत का लिहाज करो, घरों का माहौल मुत्तहिद करो, आपस में बैठकर बातें करो, मस्जिद को आबाद करो, घरों में भी शरीयत का माहौल कायम करो।
एक भी अगर गलती करते हैं सब मिलकर उसकी इस्लाह करो, मारने काटने की जरूरत नहीं है, मुत्तहिद फिक्री तौर पर, अमली तौर पर एक हो जाओ। तो ट्रेलर आपने देख लिया है इत्तेहाद की क्या बरकत है कि फिरका परस्त को झुकना पड़ा है। इंशाअल्लाह कल वो दिन आएगा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो अहकमुल हाकिमीन की हुकूमत के तहत इंशाअल्लाह साबिरों में से किसी को उठा खड़ा करेगा और आपका वो हाकिम होगा। ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने कह दिया है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम हुकूमत लोगों में बदलते रहेंगे। ये अल्लाह पाक का है, ये अय्याम बदलते रहेंगे। अगर वो समझते हैं कि आज मेरा दिन है तो वो उनकी थिंकिंग है। रब कहता है आज तेरा दिन है, कल मेरे मरने वालों का दिन होगा। सब्र करने वालों तुम्हारे साथ अल्लाह है, मुत्तहिद रहो, सदाए तौहीद है, इत्तिहाद उम्मत हबीब। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनकें, बहार रानाइयां नसीब फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, जो सुन्नत नहीं पढ़ सके